चार वक्ता आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी जी हैं। आईआईएम कलकत्ता के अलुमनाई रह चुके हैं और आईजीआईटी उड़ीसा में भी तकनीकी के प्राध्यापक हैं। तो आगे जानने को इनसे सुनने को मिलेगा। साथ ही अजीत तिवारी है, कौटिल्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के, जो अर्थशास्त्र पे काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संकेत शिखर मौजूद है, आर्यभट्ट कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। और प्रियदर्शी राठौर जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर और तीन मूर्ति में रिसर्च एसोसिएट है, वो हमारे साथ उपस्थित है। मैं प्रियदर्शी राठौर को आगे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। प्रदीप जी, आपका माइक म्यूट है। Now I'm audible. Hello. Yes, you are. Okay. सुनाई दे रहा है। Done. Good evening, everyone, and very warm welcome to you all. I, Priyadarshi, welcome you all on behalf of Kashi Foundation. This is our fourth lecture in our series of Kashi Dialogue. Today's topic is impact of COVID-19 on religious economy and tourism. In conversation with me and my fellow Sanket, we have our distinguished guest, Mr. Siddharth Tiwari, who is by education holds a bachelor's and master's degree in engineering. He is alumnus of IIT Kharagpur. He is by professor, assistant professor at IGIT Odisha. His interest area include service, socio-economy, and polity. He has worked with the various think tanks too. In our series, we have another speaker, Mr. Ajit Kumar Tiwari, an alumni of IIM Kolkata, worked with the corporate sector for more than 6 years. He is also a founder director of Kautilya International Foundation, which deals with the civilizational, cultural, and policy research center. Now, we know that COVID-19 have impacted not just India, but worldwide in our life. The theme itself says how the coming of COVID-19 have affected Indian economy and making it very specific to the religious economy. Because we have seen the focus of our government on the various aspects of economy, but the religious economy was not given as much as importance as it should have given. Because we see like there are various states which runs on the religious economy. Just for example, Kashi, Katra, Amritsar. There are various places whose economies run on the religious tourism itself. Modi ji announced on 22nd of March that it will be a complete lockdown. So the travel and tourism was stopped. So somehow it affected the tourism too. Now I'll not take your much time. I would request Mr. Siddharth Tiwari to take on. I think 8 to 10 minutes is enough, Siddharth, for you to explain the topic in brief. Yes. Then we'll have a conversation and we'll take the question. So Sure. now I would request Siddharth to carry forward the talk. Thank you, Pradarshi ji, and I really thankful to Kashi Dialogue for this vibrant issue to discuss in this platform, and I especially thank you for inviting me as a speaker in this event. It is a very good team effort by Pradarshi, Sanket, Abhinav, Ayush, and of course my good friend Bhanuji. So in today's context, first of all, let me tell you that whatever I am going to tell, all these information are not mine. Of course, I have collected information from the experts because I am not expert. I am also learning. So if when we talk about this tourism economy, or if we say that a term I rather use than the religion, that it is a kind of spiritual economy. And when we talk about this economy, so there, so when we talk about the Bharat, so in current context, we must categorize in two pieces. So first piece, if I say, in the current context, what is the economy is basically handled by the expert in the academia, in the universities worldwide. So for today's discussion, let me first come to the point. I have gone through this World Travel and Tourism Council. So what this World Travel Tourism Council tells about the tourism itself, that
total 10.3% of global GDP is being contributed by this tourism only in the total global GDP. And there are 330 million people in this sector. If I say they are in the job, when we talk about organized sector of the tourism. And if you see the impact of this economy in the world, so if I take some major economic contributors like financial services, retail, travel and tourism, agriculture, automotive and mining. So out all these three, travel and tourism falls at the third category of the contribution of the in total economy. So if we talk about the India in this context, so in our country, the travel economy, what we have, it is 6.8% of total economy. Okay, and nearly 39,000, nearly 40,000 people are directly in this job. So it is kind of 8% of total employment in our country is there. And if you take the worldwide data, so 1% out of 10 is there in this particular job in that related to the travel and this tourism. Now, what is the economical real impact in the India? So if we see the India, so there are two things. One, we will have to look into the foreign traveling, and another is the domestic traveling. So if we go to the data of the foreign traveling, so it is really very big amount. So if I take the data of the last financial year 2019, so it is like 2000, more than 2000 billion Indian rupees are there, which has been earned by the foreign exchange in this particular economy sector. And so this amount is nearly more than 5.5% of total export, what we earn from the foreign exchange with the export. So nearly more than 5% it is there. So, and if I talk about the domestic traveling, so in domestic traveling, the total amount what government earns is nearly 165 to 170 crore rupees. So compared to the foreign exchange, what we get that 2,130 billion Indian rupees. So this amount is very big, this foreign exchange. Now, so this is a kind of economical information in the current context of the economist and the current calculation. But I don't know how much it is being considered for India, the informal sector, because we have a very complex scenario in our country, and I don't know how to better get these information in any kind of calculation. Now, recently, when all these things were going on, so I have also reading lots of, because everybody is now concerned for the economy of the country. So I will refer here one article by Sri S. Gurumurthy ji, who was written like this. Title of this article is that COVID-19 package, World and India. So while he's in the very beginning of this writing, he very interestingly he tells that that there are many pessimistic economists, and so I will quote from his article that one Nobel Prize winning economist during 2008, when the whole world was economical crisis, what he said that economics taught in American and British universities
it is as a costly waste of time, useless at best, and harmful at worst. So when we take this kind of, comments from such very, and this comment is from a very renowned economist and is Nobel laureate. So this actually do not give a faith to a normal citizen like us, ordinary citizen, on these policy makers. And somewhere I read couple of days back that this unprecedented time of COVID-19, it is very dangerous, and and every single decision of government, it should be very carefully taken. And therefore the policies makers, they are in big responsibility. They must be utmost careful while making any kind sort of policy, because it is not a kind of thing what they have already gone through. So if when I was why I am discussing this, because uh, when we talk about the Bharat especially, so we have and yes, one thing I would like to notify while going to another topic, that in tourism, India, uh, this spiritual tourism takes a major part in India, and that's why last year in 27 uh, I don't know. Yes, last year there was in Britain there was an exhibition. So they have made a pavilion. Indian tourism has made a pavilion based on the spiritual tourism, and because of the spiritual tourism, Indian government has already marked at 41 important spiritual tourist places, and in 25 districts. So you can see that how much these places are important for the traveling, for the Indian context point of view. Now, if I go back to another aspect of the Bharat, so this is a little different what we generally discuss in these kind of economical theories, because and let me tell you, current time, it is like a time when India in 1947 got a freedom, because that time there was a kind of a position where India could have reset itself, and many experts nowadays are telling that yes, this is a time for whole world to reset itself, and whoever will go to its traditional traditional business system, traditional culture, and other practices, those countries and societies will emerge out in a better manner. Why I can say this? Because when this COVID-19 pandemic was rising drastically in United States of America, so in White House, one economical expert has said that this worldwide problem has emerged out because of over globalization. So this over globalization means that now the world is thinking that this globalization is not good for the human society, and therefore after 2 weeks, our Prime Minister Modi has given a statement of Atmanirbhar Bharat. Now, if we talk about the Bharat, and I was reading one book of Gandhiji, and it is called the Hind Swaraj. I don't know how much it is valid at this moment, but I personally find it should be discussed at moment, because current society, it is in bigger problem and in their crisis. I don't blame anything to the government or anybody for this problem, but because this problem has arisen, our government and many agencies are trying their best. But yes, there are crises, there are unrest, and there are major problems. So I will quote from the Hind Swaraj.
I have this book in front of me. When Gandhiji and Britain discussing with one of his friends, and he is quoting, it is in Hindi, that अशांति असल में असंतोष है, उसे आजकल हम अनरेस्ट कहते हैं। तो वो एक मिस्टर ह्यूम को कोट करते हैं, कहते हैं मिस्टर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। ये असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार से पहले असंतोष होना ही चाहिए। तो एक असंतोष की स्थिति है और एक सुधार की रिक्वायरमेंट है। अब ये सुधार क्या हो, ये सुधार के लिए ये सिर्फ सत्यवर्तन का सुधार नहीं हो सकता। हमारे माननीय गोविंदाचार्य जी कहते हैं कि सुधार करना है तो व्यवस्था पे व्यवस्था परिवर्तन पे जोर देना होगा। तो मैं क्यों व्यवस्था पे आ रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मैं इस समय भुवनेश्वर में हूं और भुवनेश्वर यहाँ पर पुरी मंदिर है। पुरी टेम्पल के से पूरे एक शहर पुरी की इकोनॉमी जो है वो चलती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि उस टेम्पल में प्रतिदिन साधारण मतलब जो एक औसत रूप से 50,000 जो श्रद्धालु उस मंदिर में आते हैं, वहां का किचन का भोग जो है वो खाते हैं 50,000 श्रद्धालु। ये एवरेज बात। लेकिन जिस दिन कोई अच्छा कोई महत्वपूर्ण दिन होता है, कोई पर्व होता है, तो उस दिन ये संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। तो ये एक मंदिर में 50,000 से 1 लाख लोगों का आना, भोजन करना, तो उस भोजन को बनाने के लिए जो सब्जियां आती हैं, पर डे का यूटिलाइजेशन है 40 से 50 टन का। एंड ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये वहां के आसपास के गांव से तकरीबन 2,500 किसान देते हैं। ये एक डायरेक्ट कैलकुलेशन। वो 2,500 किसान जब उन सब्जियों को देते हैं, फिर उसके अलावा उससे उनकी जो है दैनिक जीवन चलता है। उसके बाद वहां पे कई सारी दुकानें, वहां पे कई सारे पुजारी हैं। और उसके बाद आप जब ट्रेवल करते हैं, कई लोग माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनली पीपल कम टू दिस पर्टिकुलर पिलग्रिम प्लेस। नाउ अब ऐसी स्थिति में क्या हो कि अब देखिए इस इकोनॉमी कैसे एक मंदिर चला रहा है का, कि एक ऑटो वाला भी है, एक टैक्सी वाला है, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, एजेंट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। इस तरह से एक पूरी श्रृंखला है जो इस एक मंदिर पर डिपेंड रहती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। तो ये भारत के कॉन्टेक्स्ट से मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि एक मंदिर कैसे इकोनॉमी को चलाता है। इस तरह से अगर भारत में देखा जाए तो एक 2010 के सेंसस के हिसाब से भारत में तकरीबन 20 लाख मंदिर हैं जो कि बड़े मंदिरों में आते हैं। वैसे छोटे मोटे मंदिर तो हम लोग को हर गांव, और जिस शहर में मैं रहता हूं भुवनेश्वर में, ये शहरी मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो मंदिरों की कितनी संख्या है किसी को पता भी नहीं है। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे रोजगार, कोई फूल बेच रहा है, कोई भगवान के श्रृंगार के आइटम्स बेच रहा है, इस तरह से चलता है। तो अब क्योंकि मेरा टाइम हो गया है बोलने का, बस मैं 1 मिनट और लूंगा और बस अपनी बात यहाँ से खत्म करूंगा कि ये एक व्यवस्था भारत की जो रही है, ये एक ट्रेडिशनल जो व्यवस्था रही है, इसको लेकर जो गांधी जी को मैं अभी कोट किया कि एक समय आया है कि हम इस वक्त इस समय को उस व्यवस्था के अनुरूप क्या फिर से चला सकते हैं, और अगर चला सकते हैं तो उसके लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए। मैं एक बुक यहाँ पे और कोट करूंगा बात खत्म करने से पहले। एक पुस्तक का नाम है व्यवस्था परिवर्तन की राह, वो श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी की लिखी हुई बुक है। उसमें वो लिखते हैं आखिरी में कि जो संसाधन और जो साधन है उनसे हम युद्ध नहीं, बड़े युद्ध साधनों से नहीं जीते जाते हैं, साधना से जीते जाते हैं। तो आज इस समाज को और इस हमारे पूरे समाज को, जिसमें सरकार भी आती है, हम सब आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, हम सबको साधनाकृत होके एक प्रयास करने की जरूरत है और इस समस्या से हमको निकलने की आवश्यकता है। अब आपने आगे की बात रखने के लिए मैं संकेत जी को
hand over. Thank you, Subhash. Thank you so much for your enlightening speech. Even I believe that after globalization, India was supposed to be driven by the consumer market and the consumer economy. Not only that, when we got independence, we were said that Indian democracy will fail within 5 to 10 years. And we also believe, we were told that we believe on Hindu rate of growth because we believe on karma and rebirth. And I also looked at the rebuild of Ram Mandir in a very different perspective, because it will build up the economy. So taking this league forward, may I invite Ajit Tiwari ji to focus on the history of the temple economy, how the temple were administered and how temple played a very important role in our economy. Ajit Tiwari ji, please unmute yourself. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है आवाज जी। पहले तो मैं भानु जी और भानु जी के साथ सभी मित्रों को, अभिनव जी, संकेत जी, प्रियदर्शी जी, काशी फाउंडेशन को, भानु जी के साथ लगे सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं, जो इस समय एक आपत्ति काल का समय है और इस आपत्ति काल में भारतीय संस्कृति से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का ये एक जो महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैं काशी फाउंडेशन के हमारे सभी मित्रगण बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन के पात्र हैं। अभी बहुत ही उम्दा वक्तव्य हमारे मित्र सिद्धार्थ तिवारी जी के द्वारा दिया गया, जिसमें इन्होंने पूरा टूरिज्म का क्या रोल है पूरी इकोनॉमी में, स्पेशली रिलीजियस टूरिज्म एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म पर इन्होंने अपनी सारी बात रखी। रिलीजियस इकोनॉमी की बात करें, रिलीजियस इकोनॉमी जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें तो रिलीजियस इकोनॉमी में वैसे तो अभी संकेत जी ने कहा टेम्पल इकोनॉमी पर अपनी बात रखने के लिए, टेम्पल इकोनॉमी, टेम्पल कैसे अपना रोल प्ले करते थे, टेम्पल का क्या इंस्टीट्यूशनल वैल्यू था अदर देन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। इस पे आने से पहले अगर थोड़ी सी हम ये देखें कि रिलीजियस इकोनॉमी के अगर 3 इम्पैक्ट, जैसे अभी बहुत ही बखूबी इन्होंने हमारे मित्र सिद्धार्थ जी ने इस बात को रखा कि एक तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के कारण चलने वाली सारी व्यवस्था, जिसमें एक आदमी कहीं से चलता है कहाँ जहां तक पहुंचता है, उसके अंदर का सारा वहां के बीच का जो सारा तंत्रजाल है, तो उस तंत्रजाल से जुड़े लोगों का आर्थिक भविष्य, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इन सारे विषयों के साथ साथ जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनकी अपनी जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज के कारण जो सारी चीजें संचालित होती हैं। अब हमारे यहाँ जो मंदिरों की बात करते हैं, मंदिरों की बात में आप देखें अगर भारतीय व्यवस्था में, तो भारतीय व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं राज्य के अलावा, गुरुकुल और टेम्पल। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति पर जो निरंतर 12वीं सदी से आक्रमण, 12वीं सदी से पहले भी आक्रमण होते थे, लेकिन 12वीं सदी से आक्रमणों की जो निरंतरता हुई, तो उस निरंतरता में आप देखेंगे कि राज्यों पर विजय के बाद सबसे पहला काम किया गया कि मंदिरों और गुरुकुलों को नष्ट किया गया। इससे पूर्व आप देखें कि इससे पूर्व जो जब राज्यों पर आक्रमण नहीं होता था तो पीछे से आक्रांता आते थे और वो मंदिरों को लूट कर ले जाते थे। सोमनाथ मंदिर पर 16-17 बार आक्रमण हुए, ऐसे अनेक मंदिर, पहले मंदिरों पर आक्रमण हुए, उसके बाद से सुनियोजित ढंग से ये सिलसिला चलता रहा। तो ये क्रम क्यों आगे बढ़ा और मंदिर ही आक्रमण के केंद्र क्यों बने रहे, इसको समझने के लिए अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है टेम्पल इकोनॉमी पर और रोल ऑफ टेम्पल इन इंडियन सिविलाइजेशन पे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं भारतीय विद्वानों द्वारा, भारत के बाहर के विद्वानों के द्वारा बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी लिखे गए हैं, इस पर कई सारी पीएचडीज भी अवार्ड की गई हैं। टेम्पल हमारे यहाँ 2-3 प्रकार के रोल प्ले करते थे। आप देखें हमारे यहाँ भारतीय व्यवस्था में जो इकोनॉमी है इसको वार्ता कहते हैं। तो वार्ता के अंदर कृषि भी आता है, पशुपालन आता है, वाणिज्य पूरा ट्रेडिंग आता है, और इसके साथ साथ
इंटरेस्ट पर लेन देन, कुसीद कहते हैं बैंकिंग। कुसीद संस्कृत टर्म है जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत कुसीद जो ब्याज पर जो लेन देन होता है। अब मंदिर इन चारों चीजों को फुलफिल करता है। एक तो मंदिर अपने आप में एक बड़े कंज्यूमर के रूप में थे। अभी हम देखते हैं तो मंदिर सिर्फ एक कर्मकांड की अपनी जो एक उसके अधिष्ठात्री देवी हैं या उसमें जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा है, हम उस देवता की पूजा के लिए वहां जाते हैं। तो एक वो कर्मकांड या एक मन की शांति के लिए, श्रद्धा के लिए हम मंदिर में जाते हैं। तो वो हमारी जो ये है सांस्कृतिक निष्ठा है, जो हमारी आध्यात्मिक निष्ठा है उसके साथ, इसके तहत हम मंदिर में जाते हैं। यहाँ तक बात आके रह गई है। अदरवाइज हमारे मंदिर को अगर हम देखते हैं तो हमारे मंदिर सिर्फ कर्मकांडों के लिए ही नहीं, अपितु कर्मकांडों के अलावा वहाँ ये व्यायामशाला भी है, वहाँ पाठशाला भी है, अनेक प्रकार के शिल्प कारीगरी, अनेक प्रकार के कि आप कहें कि व्यवस्थाओं का वह एक पूरा जाल है, एक तंत्र है। और वहां से आप ये देखें कि मंदिर, अगर हम भारतीय मंदिरों की आर्थिक संरचना को देखते हैं तो भारतीय मंदिर, उसकी निष्ठा ऐसी है भारतीय मंदिरों में समाज की, वहां की इसकी राज्य व्यवस्था की, कि बहुत सारे राज्यों के कोष को मंदिरों में सुरक्षित रखा जाता था। हम अगर दूसरे तरफ ये देखते हैं, मंदिर हमारे यहाँ एक बड़े एम्प्लॉयर के रूप में मंदिरों का एक था। एक मंदिर में एक रिसर्च पेपर ऐसे आए हैं, एक आपको ये मिलते हैं, क्या कहते हैं, जो आपको अभिलेख मिलते हैं। एक मंदिर 600 से लेके 1000, 2000, 2500 तक के, मैक्सिमम 2500 तक के हमको ये नियोक्ता के रूप में मंदिरों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मंदिरों को देखें तो इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो हम ये देखते हैं कि मंदिरों को चढ़ावा मिलता था, या मंदिरों को चढ़ावा के साथ साथ जो राज्यों के द्वारा अनुदान मिलते थे, तो दो चीजों के लिए अनुदान मिलते थे। मंदिरों को जो अनुदान मिलता था, पहला अनुदान मिलता था मंदिर के अपने संचालन के लिए, मंदिर की अपनी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए। दूसरा, मंदिर एक प्रकार से वो एक संस्था का काम करते थे जो आप ये कहें कि लोक कल्याण के लिए, वहां के स्थानीय जन कल्याण के कार्यों के लिए, जैसे सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करना है, कुएं का निर्माण करना है, स्थानीय स्तर पर पाठशालाओं का निर्माण करना है, तो इसके लिए भी मंदिरों को अनुदान वहां के राज्य की इकाई द्वारा दिए जाते थे या वहां के श्रेष्ठी वर्ग के द्वारा दिए जाते थे। इसके अतिरिक्त आप देखें तो लगभग सभी मंदिरों में आप प्राथमिक स्तर की सभी मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी। तो पाठशालाएं चलने की तो फिर एक पूरा उसका तंत्र होता था। मंदिर हमारे यहाँ जो इन रूट ट्रेडिंग होता था, जो सार्थवाह जो सार्थ जाता था, पूरा एक काफिला जाता था ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे मंदिर एक संस्थागत रूप से हमारे इन व्यापारियों को, सार्थवाहों को, सार्थ को धन देते थे व्यापार के लिए। और इसकी तुलना में जब वो वहां व्यापार से वापस लौटते थे तो हर ऋण पर उनके एक निश्चित ब्याज की राशि नियत होती थी, ब्याज की दर से वो ब्याज देते थे। मंदिर एक बैंक के रूप में डिपॉजिट, आज के समय में आधुनिक बैंक जिस प्रकार से डिपॉजिट स्वीकार करते हैं और उस पर भी वह एक तय ब्याज की दर से वो वापस करते हैं। हमारे यहाँ मंदिर डिपॉजिट लेते भी थे और ऋण भी देते थे। ऋण किसको किसको देते थे, तो हमारे मंदिर वो इनको क्या कहते हैं, हमारे ये ग्राम सभा को देते थे ऋण, व्यक्तिगत ऋण भी देते थे और कृषि कार्यों के लिए देते थे, व्यापार के लिए देते थे, व्यक्तिगत किसी का कोई व्यक्तिगत कार्य है उसके लिए देते थे। व्यक्तिगत कार्यों के लिए दिए गए ऋण के रूप में वो जमीन या कोई और चीज, जैसे मॉर्गेज के रूप में आजकल बैंकिंग में, मॉडर्न बैंकिंग में ये सब मॉर्गेज रखते हैं, वैसे हमारे मंदिर जमीन गिरवी रखते थे। तो मंदिर हमारे यहाँ एक प्रकार से पूरा एक आर्थिक तंत्र को संचालित करते थे। पूरी वार्ता में मंदिरों का, पूरी वार्ता यानी कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और कुसीद यानी ब्याज पर लेन देन, इन सारी चीजों में मंदिरों की एक बड़ी भूमिका होती थी। इस पर अगर हम भारतीय शोध कर्ताओं की दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ कई सारे लोग, दक्षिण भारत के इतिहास पर, उत्तर भारत में तो मंदिरों की इतनी सुदृढ़ परंपरा नहीं मिलती, क्योंकि उत्तर भारत में आक्रमण कुछ ज्यादा रहे, तो बहुत बार मंदिरों को ध्वस्त किया जाता रहा, बार लोग फिर अपने जो श्रद्धा से मंदिर बनाते थे, तो इस कारण वो एक बहुत पुरानी परंपरा नहीं मिलती है।
परंतु इसके उलट अगर दक्षिण भारतीय मंदिरों पर जाएं तो इस पर दक्षिण भारत के बहुत बड़े इतिहासकार, भारत के बड़े इतिहासकार हुए जिन्होंने दक्षिण भारत के बारे में बहुत सारा लिखा है। के नीलकंठ शास्त्री जी, के नीलकंठ शास्त्री जी लिखते हैं कि मंदिर जमींदार भी थे, मंदिर बहुत बड़े उपभोक्ता भी थे, मंदिर बहुत बड़े नियोक्ता भी थे और एक कल्याणकारी जिसको आप कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमी के वो प्रोपोगेटर भी थे। तो इस दृष्टि से हम देखें तो मंदिरों को अभी मंदिरों की हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के संचालन में हमेशा एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। मंदिरों के पास अब अभी बीच में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, अभी हाल में इधर आया कि वो मंदिरों के वो गोल्ड का ये कर दिया जाए, इकोनॉमी में ले आया जाए। इस पर अलग अलग विचार हैं भारतीय मतलब दृष्टि से जो लोग सोचते हैं, जो स्पिरिचुअल हैं और जो जिनकी आज की व्यवस्था पर दृष्टि है कि मंदिरों के स्वर्ण को अगर हम मार्केट में लेकर आते हैं, व्यवस्था में लेकर आते हैं तो उसका क्या उपयोग होगा। इन सारे विषयों पर जाने से पूर्व हम देखें कि मंदिरों पे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से औपचारिक रूप से जो अनुमान है वो अनुमान है लगभग 4000 टन गोल्ड मंदिरों में मतलब पूरा जो स्वर्ण भंडार है मंदिरों का, जो ऑफिशियली वर्ल्ड में 3rd पोजीशन पर है। अनऑफिशियली लोगों को पता है कि अगर पूरे हमारे सारे मंदिरों के अगर स्वर्ण भंडार को हम देखें तो ये कई गुना ज्यादा, कई गुना बड़ी वो ये हो सकती है, अमाउंट हो सकती है। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हमारे मतलब एक रिलीजियस सेंटर होने के कारण उस अपने घर से रिलीजियस सेंटर तक जाने में जो एक पूरा आर्थिक जाल है, दूसरा उस रिलीजियस सेंटर द्वारा, उस मंदिर द्वारा या जो ये है, ये रिलीजियस सेंटर है, जो भी रिलीजियस सेंटर है उस सेंटर के द्वारा संचालित पूरी उसकी अपनी जो इनिशिएटिव्स हैं, तो ये इनिशिएटिव समाज में कितना बड़ा अंतर डालते थे या आज के समय में इनकी जो स्थिति क्या है, आगे इनकी स्थिति क्या हो सकती है। और ठीक ही कहा हमारे अभी सिद्धार्थ तिवारी जी अपनी बात कह रहे थे, तो ये कह रहे थे कि आज की इस काल में आज की आवश्यकता क्या है कि क्या एक बार पुनः हम इस व्यवस्था को सोच सकते हैं। आखिर सब लोग अपनी जमा पूंजी या राज्य व्यवस्था अपना कोष मंदिरों में सुरक्षित क्यों रखता था, जबकि राज्य तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सुरक्षित राज्य के पास अपने सारे व्यवस्थाएं होती थी जो अपनी चीजों को सुरक्षित रख सके, और राज्य से ज्यादा सुरक्षित मंदिरों को कैसे समझता था। अगर कोई भी राज्य शासन पद्धति थी, कोई शासक है तो वो अपने कोष को पूरी मंदिरों में कैसे, अभी पद्मनाथ टेम्पल की बात हुई, पद्मनाथ टेम्पल के 1-2 तहखाने खुले हैं जिसमें बहुत सारी आपको स्वर्ण भंडार मिले हैं, बहुत सारे अभी मिलने बाकी हैं, इस पर कई प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो तात्पर्य यह है कि उस समय लोगों की जो निष्ठा थी, लोगों की जो अपनी सुचिता थी और मंदिर के संचालन की जो व्यवस्था में लगे हुए लोगों की अपनी सुचिता थी, थी, इस साख के कारण उनकी अपनी जो सात्विकता थी, उनकी उस सात्विक प्रभावित होकर लोग अपनी जमा पूंजी को मंदिरों में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझते थे। तो आज की स्थिति में एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ये जो इस आपत्ति काल ने जैसा सिचुएशन हमारे सामने रखा है, जैसी परिस्थितियां हमारे सामने बनी है, तो इन परिस्थितियों से निकलते हुए हम अगर हम अपने पीछे की व्यवस्थाओं को हम देखते हैं तो क्या उन व्यवस्थाओं का कोई प्रारूप आज के समय में इस आपत्ति काल से निकलने में कोई सहायक हो सकता है, और इस आपत्ति काल से निकलने के बाद की व्यवस्थाएं कैसी होगी, उसमें भारतीय परंपरागत व्यवस्था का क्या रोल हो सकता है, जिस पर सिद्धार्थ जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला। मानी के एन गोविंदाचार्य जी की पुस्तक का उन्होंने हवाला देते हुए, व्यवस्था परिवर्तन की राह का उन्होंने संदर्भ देते हुए ये बात कहा कि 1947 में ही हम इस बात को रख सकते थे, लेकिन क्या इस कोविड-19 के की जो विश्व व्यापक इसका जो प्रभाव हुआ है, इस प्रभाव ने हमको इस स्थिति में ले आकर रखा है क्या कि एक बार पुनः हम देखें कि भारतीय परंपरागत व्यवस्था की कितनी सारी चीजें हैं जिसको हम सामने रख सकते हैं, और वही चीजें हमारे जिसको हम कहते हैं कि जिसको हम धार्मिक अर्थव्यवस्था के रूप में कहते हैं कि ये तो अभ्युदय श्रेयस
ससिद्धि सधर्म। तो क्या हम अभ्युदय के लिए, भारत अभ्युदय के लिए, जो हम अपने कल्याण के लिए, अपने मटेरियल वेलबींग के लिए, मटेरियल वेलफेयर के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं हम के कुछ अंश को मतलब युगानुकूल परिवर्तन करते हुए हम अपनी चीजों को अपने सामने रख सकते हैं, इस पर जरूर हमें विचार करना चाहिए। और आज के समय में जो हमारे युवा चिंतक, विचारक और जिनकी दृष्टि है इन सारी चीजों को देखने में, जो अपने अतीत की तरफ देखना चाहते हैं, अपने अतीत से सीखना चाहते हैं, वर्तमान को समझते हुए जो भविष्य को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनके बीच कोई सामंजस्य, कोई तारतम्यता बन सकती है क्या? कोई सामंजस्य बन सकता है क्या? वो सामंजस्य क्या हो सकता है? इस पर यह बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो हम इसमें भी देख रहे थे पार्टिसिपेंट लिस्ट में बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे लेक्चरर प्रोफेसर्स, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे शोधार्थियों और ऐसे अध्येताओं के साथ चिंतन में, बैठक में हम अपनी परंपरागत ज्ञान परंपरा पर चर्चा करें, उनके ऐतिहासिक मूल्यों की बात करें, उनकी जो वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता के पर बात करें, और सामने जो जिनको हम पढ़ाते हैं, जिनको हेलो, हाँ, थोड़ी समय की कमी है, थोड़ी एक हाँ, मिनट नहीं, ठीक है, मैं अपनी चीजों को, मैं अपनी बात को अभी समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। इन सारी चीजों के साथ हमारा जो, हमारे काशी फाउंडेशन के मित्रों का यह जो प्रयास है कि अपनी ज्ञान परंपरा से, अपनी चीजों से लोगों को परिचय कराना, और उस अपनी ज्ञान परंपरा से लोग लाभान्वित हों, उस बात को आगे बढ़ाएं, तो इसके लिए मैं एक बार पुनः काशी फाउंडेशन के अपने सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार तिवारी जी, अजीत तिवारी जी, और आपने इतना अच्छा व्याख्यान किया और प्राचीन जो इतिहास है हमारे टेम्पल इकोनॉमी का, उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे कुछ प्रश्न हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में वो अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। सर, थोड़ा सा हमें ब्रीफ में बताइए, क्या कभी एक ऐसी कोई पैंडेमिक पहले भी रही है और जिसमें और टेम्पल ने लोगों को मदद किया होगा? कुछ एक दो इंसिडेंट अगर आप बताएं तो। देखिए, अभी तो बहुत दूर क्यों जाते हैं, पेंडेमिक तो अभी ये कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना है, कोविड-19 का अगर डेथ रेट देखें या ये सारी चीजें देखें तो बहुत ज्यादा भयावह नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर हम 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, या इससे पहले बहुत हैजा का बड़ा प्रकोप होता था, प्लेग का बड़ा प्रकोप होता था भारत में। स्पेनिश फ्लू में तो कहते हैं अलग अलग डेटा है, 3 करोड़ से 5 करोड़ लोग मर गए थे, जबकि उस समय टोटल आबादी ही 2 या 2.5 अरब के आसपास होती थी। हमारे यहाँ ये दोनों संस्थाएं, मैंने कहा ना कि राज्य के बाद जो 3 प्रमुख संस्थाएं होती थी, राज्य, गुरुकुल और मंदिर, तो ये दोनों संस्थाओं का, गुरुकुलों, राज्य के अतिरिक्त गुरुकुलों और इनका क्या कहते हैं, हमारे मंदिरों का, ये बहुत बड़ा रोल होता था, क्योंकि ये आयुर्वेद के भी बहुत बड़े वो होते हैं, शोध केंद्र होते थे। तो वहां औषधि का निर्माण करना और उसको गांव गांव तक पहुंचाना, मतलब वहां से ब्रह्मचारी गुरुकुलों से भी और मंदिरों से भी, मंदिर से उनके अर्चक और उनके शिष्यों की एक बड़ी टोली निकलती थी। 2-3 ऐसे उदाहरण है, मतलब अभी एग्जैक्ट मैं वो सर्च कर रहा था, मैंने ही एक जगह में, हमारे एक पेपर में है, वो अभी मुझे मिला नहीं, कि कैसे ये हैजा होता था और वो हमारे यहाँ मंदिरों और गुरुकुलों से कैसे ये ब्रह्मचारी निकल के जाते थे, उनके शिष्यगण निकल कर जाते थे और गांव गांव में वो औषधि लोगों को पिलाते थे। अंग्रेजों ने इस पर ये करके क्या कहते हैं, नियम लागू करके इस प्रैक्टिस को बंद करवाया कानून के तहत। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता था इन सारी चीजों में। ऐसी कोई आपदा आए, ये भंडार गृह भी होते थे, मतलब अन्न का भंडारण भी यहाँ होता था। तो ऐसी स्थितियों में मतलब जन कल्याणकारी सारी व्यवस्थाओं का, क्योंकि हमारे सारी संस्थाओं की एक भविष्य की तरफ भी दृष्टि होती थी ना, तो भविष्य में आने वाली क्या चुनौतियां हो सकती थी, उन चुनौतियों से जूझने के लिए क्या आवश्यक तैयारियां होनी चाहिए। अगर आपको समय हो तो एक छोटा और लूंगा। 3 प्रकार की स्थितियों की, 3 प्रकार के स्थितियों की हमारे यहाँ चर्चा है। कहते हैं अनागत विधाता, जिसको कहते हैं ना कि जो भविष्य की तरफ देखता है, भविष्य की चीजों को पहले भांप लेता है। दूसरा हमारे यहाँ होता था, उसको कहते थे यद भविष्य, नहीं, प्रत्युत्पन्न मते, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, कि जैसा होगा उस समय तुरंत कुछ चीज क्रिएट करना, तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके युक्ति लगाकर उस समस्या से निकल जाना। तो हमारी ये सारी संस्थाएं बहुत ही दूरदर्शी, जिसको फोरसाइट एंड फारसाइट
दोनों इनके पास होती थी, और वो सारी चीजें, चाहे वो अन्न का वितरण हो, चाहे औषधि का वितरण हो, आहारचर्या हो, इन तमाम सारी चीजों पर हमारे मंदिर, अभी हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे मंदिरों का स्वरूप क्या था। आज जिस चीज को देखते हैं उस हिसाब से मतलब वो कल्पना से भी परे है एक्चुअली। तो पूरा समाधान अभी हमारे जो अभी मंदिरों में और मंदिर की जो इकोनॉमी में है उससे संभव है, और हम इसको थोड़ा एंटिसिपेट करें, और ये कोविड-19 हमारे इंट्रोस्पेक्शन का एक बहुत अच्छा समय है कि कैसे हम इसको फिर से रिवाइव करें, हाउ वी कैन रिवाइव द लॉस्ट कल्चरल ethos. Siddharth Tiwari ji, I would like to ask you that you are also from a technology background, that how technology upgradation, like we are talking about AI, robotics, and IoT nowadays, so how these things will help in the revival of cultural ethos, especially in our temple, and how government should look at these temples for boosting our economy? Sanket ji, thank you. It's a very good question. But to be very honest, I'm telling you, though I am in technology and I also respect and like technology a lot, but there are both pros and cons of the technology. All right. So the way now people are talking about the over globalization. So after a couple of years, people will be talking about the over technology, over use of technology rather. So what government can, I don't see in the technological perspective, we are talking especially about the temple-based economy or our tourism based on the spiritual tourism, if I'm talking about. Yes, we can, using the technology, we can make the world aware of how our temples are, how our spiritual practices are, the way we are already doing, like Incredible India. So technology can be used here, but if you really have to gain the temple, so you will have to be physically present there. So this is one of the things. Now, what I think that what government can do, recently yesterday I saw one tweet from Dr. Subramanian Swamy that he is writing to the Prime Minister that the government of Uttarakhand is already taking over of 51, nearly 51 like prominent temples, and the whole Uttarakhand is a state of temples, I should say. So why the government is pressurizing the temples? What I personally think, that now this is a time for the temples to show the society how they can run the society. They should complementary, they should be helpful to the government, and I think over governance to the temples, it is not good. Let them give some freedom, let them give to make their own structure based on their traditional practices. For example, I'm telling you, the Puri temple, if there are 700 pujaris are there, those who cook prasad for the Lord Jagannath, and they daily make prasad for more than 50,000 people. So can't they feed the 50,000 people in there around the Puri? They can. So government must give them some permission. So this is one of the examples I'm telling you. They can feed all those who are working for the temples. Those whose daily basis need are affected by the temples. So temples can take care of themselves. Thank you, Siddharth ji. We have a question asked by Amandeep Kaushik ji in the chat box. आज के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों के समर्थन, संरक्षण, संवर्धन, जहां समाज में जातिवाद और धार्मिक भावनाओं का आहत होना व्याप्त है, कहां तक उचित है और क्या संभावनाएं हैं? अजीत जी, आप थोड़ा इस पे बोलना चाहें? मैं सवाल रिपीट करूं? बिल्कुल, हाँ, एक बार और जरा बोल दीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में मंदिरों के समर्थन, संरक्षण, संवर्धन, जहां समाज में जातिवाद और धार्मिक भावनाओं का आहत होना व्याप्त है, कहां तक उचित है और क्या संभावनाएं? असल में बीतते कालक्रम में इसमें थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे ऐसी डिस्क्रिमिनेशन थी, न किसी प्रकार का वैसा ये व्यवस्था था, लेकिन हाँ, बीतते कालक्रम में विवेक शून्यता हमारे अंदर भी आई है। और जैसे कि मंदिरों के बारे में ही हमने बताया कि सारी व्यवस्था तो मंदिरों से ही चलती थी लोकल लेवल पर, लेकिन हुआ क्या
जब मंदिर हर जगह जब क्षरण हुआ तो समाज के सारे वर्गों का क्षरण हुआ। तो इस समय भी जरूरत तो इस बात की है कि पहले हम चीजों को उस कॉन्टेक्स्ट, उन चीजों को एप्रोप्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी हमें दिख रहा है, और इससे हम अपने पूरे पास्ट को रिलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। पास्ट का भी मतलब एक 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल में एक ही कंसेप्ट तो नहीं चलता है, एक ही प्रैक्टिस तो नहीं चलती है ना। बीच को उसको कालखंड को भी तो कालखंड को बांट कर तो देखेंगे ना कि किस कालखंड में क्या प्रैक्टिस रही, और वो प्रैक्टिस रही तो वो क्यों ऐसी रही, किसके इन्फ्लुएंस में रही। हमारी चीजें, हमको अगर भारतीय व्यवस्थाओं को देखना है तो 1192 के पूर्व की व्यवस्था, अगर हम पूरे 5000 साल को देखें तो 5th सेंचुरी एडी से पहले की व्यवस्था, 5th सेंचुरी एडी से 1200 के आसपास की व्यवस्था, और 1200 से 1857 तक की व्यवस्था, 1800 से 1947 तक की व्यवस्था। आप सबको काट मतलब अलग अलग कालखंड को देखें और उस अलग अलग कालखंड की व्यवस्थाओं को देखें, और जो समाज में क्षरण हुआ है किस समय हुआ, किस कारण हुआ। तो क्या टेम्पल की व्यवस्था को हम किस कालखंड के हिसाब से देखना चाहते हैं? क्या हम 1200 से 1857 के बीच जो व्यवस्था रही उसके हिसाब से देखते हैं? 1947 के बाद अभी किसी मित्र ने लिखा, मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स देखने का प्रयास कर रहा था कि किसी ने लिखा कि क्या सरकारी, क्योंकि समाज इतना कमजोर हो गया कि इसको भेड़ समझ लेते हैं, कोई भी इस पर ये चारागाह है, आप ले आइए चर के चले जाइए, जो करना है सारा गेम, सारा आप प्रयोग, सारी व्यवस्थाएं तो इसी समाज और ये सनातन समाज और सनातन समाज से जुड़ी संस्थाओं के साथ आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है कर लेते हैं। इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो इसके इटर्नल वैल्यूज हैं, उसको उस पर तो बात ही नहीं करते। इसके नेगेटिव इंपैक्ट जो इसके प्रमुखों द्वारा नहीं, ये किसी विशेष कारणों से जो क्षरण आया है उसमें कुछ हमारी भी गलती है, उसको भी देखना है। तो निश्चित है कि मंदिरों को उनके मूल स्वरूप में एक जाना चाहिए, और मंदिर एक बड़े हार्मोनी के केंद्र हो सकते हैं। वहां किसी प्रकार के, बल्कि ये जहां मंदिर होंगे और जहां इस प्रकार की, जहां स्पिरिचुअलिटी होगी, जहां इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे, वहां विवाद तो और कम होंगे। जितनी सात्विकता आएगी, जितनी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, उतना ही ज्यादा आप शांत होंगे, सौम्य होंगे, उतना ज्यादा विवाद कम होगा, उतना ही ज्यादा आप पुरुषार्थी होंगे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, कोई भी और आगे कोई क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट में लूंगा आपका, जो कि अभी के समय में बहुत ही प्रासंगिक मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे लगा कि आप सब मित्रों के साथ शेयर कर लूं। वो ये है कि कोविड-19 ने, जो कोविड-19 के कारण हम लगभग 40 दिन से अधिक हो गया है, एग्जैक्ट डे आप लोग को अच्छे से पता होगा, 14 मतलब 23rd ऑफ मार्च से ये लॉकडाउन में हम लोग हैं। तो इस दौरान हमारे यहाँ कहते हैं कि मतलब एक साइंटिफिक स्टडी मैं कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि इसमें 21 दिन किसी को एक कंडीशन में रखने में, 24 घंटे अगर एक कंडीशन में रखते हैं तो उसका मेंटल कंडीशनिंग उस हिसाब से हो जाती है कि पूरी लाइफ जो वो डिसीजन लेता है या लेती है, तो उसमें उस 21 दिन के परिवेश का बड़ा फर्क होता है। ये जब से 23 मार्च से अब तक आज हम जो लॉकडाउन में आज तक हम लोग हैं, इसमें एक चीज तो हमारे अंदर आ ही गया है कि हम सबको आवश्यक और अनावश्यक, ये क्योंकि रिलीजियस इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात हो रही थी, तो हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग कैसे थी उस हिसाब से हमारी इकोनॉमिक थिंकिंग में वो कहते थे कि इसमें इसका अथर्ववेद का वो क्या है श्लोक है कि सतहस्त्र समाहरः सहस्त्र हस्त संकिरः, 100 हाथों से कमाओ 1000 हाथों से बांट दो। या हमारे इसका एक श्लोक है, क्या कहते हैं, गांधी जी ने भी उसके बारे में कहा है, ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है। गांधी जी ने कहा कि सारा हिंदू वांग में खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, ईशावास्योपनिषद का यही पहला श्लोक अगर बचा रहेगा तो भी हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा लेंगे। वो यत् किंचित जगत्यात् तेन तत्तेन भुंजिता, तो जो कुछ भी है बांट कर खाना, जो है उसमें बांटो, बांट कर पहले सबको दो और फिर उपभोग करो, संतुलित उपभोग की बात है। तो संतुलित उपभोग की बात है हमारे यहाँ, जिसकी बात बार बार हमारे शास्त्रों ने की है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए हम समृद्धि के चरम तक पहुंचे हैं। 2000 साल के आर्थिक इतिहास के अध्ययन में 1st सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी रहा है। तो आज इस कोविड-19 ने जो सिचुएशन हमारे सामने रखा है, इसमें एक अच्छी बात जो आई है कि सब लोग आवश्यक और अनावश्यक के बीच में जो एक भेद समझ गए हैं, जिसकी जो विवेक जागृत हुआ है,
इसको जीवन में आगे भी मेंटेन रखें। और जो एक खरीद की संस्कृति डेवलप हो गई है, यूज एंड थ्रो की संस्कृति डेवलप हो गई है, जिससे हमारे संसाधनों का अतिशय अपव्यय हो रहा है, तो इससे बचते हुए हम अपने प्रकृति केंद्रित विकास की तरफ जाएं, जो माननीय के एन गोविंदाचार्य जी वर्षों से जिस बात को कह रहे हैं, प्रकृति केंद्रित विकास की तरफ जाने के लिए कोविड-19 ने मेंटल कंडीशनिंग बहुत अच्छी कर दी है। इसको ध्यान में रखें और इसको आइडिएशन टू इम्प्लीमेंटेशन तक कैसे जाना है, इस पर जरूर विचार करें। धन्यवाद। एक सवाल था विपिन जी का कि भारतवर्ष में मंदिरों की व्यवस्था या संपत्ति को केंद्र या राज्य सरकार अपने अधीन क्यों कर लेती है? ये ना तो चर्च पे अप्लाइड है, ना ये मॉस्क पे अप्लाइड है, तो ये सिर्फ मंदिरों पे क्यों? क्योंकि वो वोकल हैं, वो अपनी बात रखना जानते हैं, हम अपनी बात नहीं रख पाते। हमको ये लगता है कि वो एक्चुअली प्रारंभ में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई कि 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको लगा कि जो हमारे नियामक संचालक हैं ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे हितैषी लोग हैं। उन हितैषी लोगों ने, उनको लगा कि हम जो वोकल नहीं है, जो अपनी बातों पर, अपनी संस्थाओं पर, अपनी व्यवस्थाओं पर एसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना उनके लिए आसान हो गया। इसलिए वो सारे मंदिरों को, जो भी मंदिर में जितना अधिक से अधिक चढ़ावा आता है, उसको ट्रस्ट बनाकर उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। आप भी अपनी चीजों पर आप अगर ये करने लगे कि जो ट्रस्ट जा रहे हैं, जो ट्रस्ट है, मंदिरों के जो ट्रस्ट बनने हैं, जो उस पर चढ़ावा आ रहा है, उस सरकार को जा रहा है, तो उस पैसे का जिस समाज से जा रहा है, उस समाज के निर्धन, बीमार, असहाय या अन्य प्रकार के जरूरतमंद लोगों में उसका कितना प्रतिशत जा रहा है, इस पर तो बहुत समय से, लेकिन उस पर अभी हम लोग जितना वोकल होना चाहिए उतने वोकल नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम वोकल हो जाएंगे, हमारी चीजों पर अतिक्रमण रुक जाएगा, फिर उनको ये जवाब देना पड़ेगा। हम ऑलरेडी वोकल हो रहे हैं, जिस दिशा में वोकल हो रहे हैं। हाँ, नहीं आप होंगे, हमें इसका पूरा विश्वास है। अजीत जी, आपके लिए एक और सवाल है डॉक्टर पवन शर्मा जी का कि वर्तमान कोविड-19 के मद्देनजर मंदिरों की क्या भूमिका हो सकती है? मंदिरों की आज के समय में अभी भी दो प्रकार से बड़ी भूमिका हो सकती है। एक सकारात्मकता के संचार में, क्योंकि एक सामान्य स्वभाव है कि जब भी थोड़ा कुछ भी होता है ना, आदमी का मन बहुत जल्दी निराशा से भर उठता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो मंदिर तो एक स्पिरिचुअल वो है, प्लेस है, तो सकारात्मकता के संचार में मंदिरों की बड़ी भूमिका हो सकती है। मंदिरों के पास आज भी, क्योंकि लोगों की जैसी श्रद्धा है, उसमें आज भारत जिस समृद्धि को था वहां से तो एकदम रसातल तक पहुंच जाने के बाद भी मंदिरों के पास आज भी संसाधन भरपूर हैं। बहुत सारे मंदिर कर भी रहे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन जो जरूरतमंद हैं, जो भूखे लोग हैं, जो सड़कों पर चल रहे हैं, जिनको मतलब बहुत बड़ी संख्या संगठित मजदूरों की, जिनकी दिहाड़ी नहीं चल रही है, तो ऐसे लोगों के बीच चाहे वो भोजन का वितरण हो या उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था हो, वो मंदिरों को करना भी चाहिए और कर भी रहे होंगे। हमको मंदिरों का जो प्रकृति है वो ये किए बिना रह भी नहीं सकते। तो सकारात्मकता का संचार और जिनको वो हैंड होल्डिंग। बिल्कुल। सिद्धार्थ, उन्नति का सवाल है एक आपके लिए। You have explained you have explained about the role of temple economy in the ancient India. Now, how do you see the role of temple in present scenario? How do you see that they are going to boost our economy right now? What do you see how the temple economy is going to play an important role post-COVID? Not just during COVID, like post-COVID-19. Once the lockdown will be over, how do you see the economy? How do you see the gathering of people? How do you see this economy will flourish? So, प्रियदर्शनी जी, अच्छा क्वेश्चन है। एंड इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा कि मैं फिर से गोविंदाचार्य जी को कोट करूंगा यहाँ पे। वो जब इस समाज का एक स्ट्रक्चर बताते हैं, इसको बहुत समझने की जरूरत है, तो उस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, कहीं गलती हो तो अजीत जी सुधार दें, कि सबसे ऊपर जो है भगवत सत्ता, उसके बाद जो है धर्म सत्ता, उसके बाद जो है समाज सत्ता, फिर जो आता है उसके नीचे आपकी अर्थ सत्ता और राज सत्ता आती है। अब अर्थ सत्ता राज सत्ता ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो ये एक पिरामिड है समाज का, ओरिजिनल भारत का पिरामिड है, जिसको कि गोविंदाचार्य जी कहते हैं, ये एकदम सही समय है। अभी क्या हो रहा है, पिरामिड उल्टा खड़ा हुआ है, इसीलिए सारा लोड जो है अर्थ सत्ता और सरकार पे, मतलब राज सत्ता पर आ रहा है।
तो हमको सबसे पहले इस पिरामिड को रोटेट करना पड़ेगा। हम सबको अपनी, अब यहाँ पे समाज सत्ता जो है वो धर्म सत्ता के अधीन होके, वो भगवत सत्ता के अधीन होके धर्म सत्ता जब अगर समाज को टेक केयर करेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। वो कैसे होगा मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ ये चीज। तो जैसे मेरा मानना है कि अब मैं वैसे तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैं उड़ीसा में हूँ। अब मैं अभी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जा सकता अगर अभी जस्ट लॉकडाउन अगर ओपन होता है, लेकिन हाँ मैं पुरी तक जरूर जा सकता हूँ क्योंकि वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। तो जो लोग हैं अभी अपना भी उनका एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा अगर वो मंदिर जाना शुरू करेंगे। मैं कहता हूँ हर किसी को लॉकडाउन ओपन होने के बाद थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके अलग अलग समय पे मंदिरों में आना जाना चाहिए। और मंदिरों को क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए सरकार को, समाज को बैठना चाहिए। जैसे एनजीओ होते हैं, आज बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों ने तो ऐसी एक वो बना रखी है, क्या कहते हैं, हेल्पलाइन, प्राइवेट हेल्पलाइन, जिसमें कि वो लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जिनको पास अरेंजमेंट नहीं है। तो क्या समाज नहीं कर सकता? मंदिर भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्यों नहीं दिख पाए? क्योंकि उनको भी रोका गया, सब पूरे समाज को रिस्ट्रिक्ट किया गया कुछ भी करने से। सरकार ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो समय की मांग थी, लेकिन समय की मांग खुलते ही, अब जैसे बड़ा मंदिर है, अब जिसके पास 400-500 करोड़ रुपए ऑलरेडी हैं जिसके अकाउंट में, जिस मंदिर के अकाउंट में, वो क्या इकोनॉमी एक नहीं चला सकता? आराम से चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसी इकोनॉमी से जो चीजें रोटेट होंगी। बट मैं फिर हमेशा कहता हूं कि वो फिर समाज का एक पार्ट होना चाहिए। सरकार को उसको सिर्फ फैसिलिटेट करना चाहिए, उसके लिए सरकार को एक सिस्टम बना के देना चाहिए। सरकार का ये रोल होना चाहिए। इस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है। Thank you so much, Siddharth ji, for narrating the role of the government should play. We have a question of Mr. Abhishek Chaturvedi, that in your address you quoted Dr. Gurumurthy. So he mentioned about costly wastage. So what does it mean, first? And the second, the short question is, what is the statistical or prediction model Dr. Gurumurthy or the speaker has used for making their prediction? देखिए, मैं पहली बात तो गुरुमूर्ति जी का आर्टिकल्स का पैराग्राफ का एक कोटेशन उठाया था जो आपके एक नोबेल लॉरेट ने दिया था। इकोनॉमी को, वो पेसिमिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनकी बात उन्होंने गुरुमूर्ति जी ने की है वहां पे। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि जो डेटा मैंने उठाया है, मैं गुरुमूर्ति जी को तो नहीं बता सकता वो कहाँ से उन्होंने, वो क्या उनका स्टैटिस्टिक्स है, बट मैंने जो डेटा उठाया है ये ऑथेंटिक। जैसे एक है वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म काउंसिल, ये पूरे वर्ल्ड का जो टूरिज्म का है डेटा वो दिखाते हैं। उसके बाद भारत सरकार की जो टूरिज्म की वेबसाइट है, आप जाएंगे, उसमें से जो डेटा है वो वहां से मैंने उसको क्रॉस वेरीफाई करके फिर मैंने वो डेटा दिया है। Okay, thank you so much, सिद्धार्थ तिवारी जी। So अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि अजय तिवारी सर ने भी बोला और आप भी कह रहे थे कि गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आप साधे से ज्यादा साधन करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन कैरेक्टर पे पड़ता है और वो देश जो है वो प्रगति की ओर नहीं जाता है, मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जो फिर से रिवाइवल होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जब हम कोविड की स्थिति में कम संसाधनों में अपना काम चला रहे हैं तो क्या वो समय आ गया है कि हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये समय आज ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम फिर नुकसान में हैं, क्योंकि मैं अभी जो वर्ल्ड वाइड जो स्टडीज चल रही है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो आज के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग बड़े संस्थानों से MBA या ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, मैं उनको कम नहीं आंकता हूँ। वो भी साधना करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं, ठीक है, मोड ऑफ स्टडीज अलग है। लेकिन क्या होता है कि अभी एक सामंजस्य बैठाने की सबसे पहली जरूरत है। एक समाज का आदमी है जो कि उस यूनिवर्सिटी में नहीं गया, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड में, लेकिन एक आदमी वहां पे है, तो इस पूरी श्रृंखला को जोड़ने की जरूरत है किसी भी मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में। तो जैसा मैंने कहा कि एक जो कि हमारा जो भारत का दर्शन क्या, और कोई भी समाज आज के समय पे या किसी भी पैंडेमिक पहले भी कभी कोई समाज में समस्या आई हो, वो तभी उभरा है जब उसने अपनी शक्ति को पहचाना है। हाँ, का चुपी साध रहे बलवाना वाली स्थिति जब आ गई है,
तो उसको अपने अपने बल को समझना है। और जब भारत अपने बल को, अपने समाज को समझेगा, और देखिए जैसे ही थोड़ा सा अभी इस कोविड में भी मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ खुद हूँ जो कि समाज सर्विस कर रहे हैं, इतना अद्भुत काम कर रहे हैं कि जो भी लोग पैदल जा रहे थे, और मजेदार बात आपको बताता हूँ, मुझे पैदल जाने वालों का एक बड़ी समस्या आई है पूरे देश में, लेकिन हमारे देश में ही एक परंपरा है कि हम लोग जल चढ़ाने सावन के टाइम पे 200-200 300-300 किलोमीटर जाके और जल चढ़ा के आते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है, तो पैदल चलने की हमारी सामर्थ्य है। तो आज उस चीज ने हमको ये एक स्ट्रेंथ दी कि हम अपने घर अपने सामर्थ्य में चल कर जाए। तो ये भारत है। तो उस भारत को आज यहाँ के सामाजिक संस्थाओं ने, ठीक है सावन के मेल समय पे सब संस्थाएं रहती हैं सड़क पे हेल्प करने के लिए, आज भी लोग आए जब मौका मिला और वो हेल्प कर रहे हैं, और उससे देखिए सुधार हो रहा है। तो सरकार की अपनी एक लिमिटेशन है, वो उतना ही कर सकती है। सरकार को भी समझना चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए, दोनों को सामंजस्य बिठाकर आगे आना है। एक और क्वेश्चन था, हाउ कैन डिजिटलाइजेशन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ हाउ डिजिटल वर्ल्ड इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोशन ऑफ टेम्पल टूरिज्म? क्योंकि इसके पहले वाले टॉक में हमारे साथ विश्वनाथ मंदिर के आचार्य जी थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको आरती सुननी है, महादेव जी का दर्शन करना है, तो आप हमारे साथ लाइव हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड टूरिज्म को कैसे हेल्प करेगा या क्या उसका इम्पैक्ट होगा? प्रियदर्शनी जी, मैं छोटा सा एक ऐड करना चाहूंगा कि अभी वर्चुअल टूरिज्म बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, बहुत सारे एप्लीकेशंस वर्चुअल टूरिज्म को लेकर के आ रहे हैं। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वर्चुअल टूरिज्म जो है, जो ऑफलाइन टूरिज्म है, उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता दें कि वर्चुअल टूरिज्म इंडिया में कहाँ तक सक्सेसफुल है। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम लोग फिर से, मैं पहले भी बोला था कि मैं टेक्नोलॉजी को बहुत पसंद करता हूँ, जैसे आज हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन एक इसका अपना एक प्रभाव है। एक कमरे में बैठकर बात करने का एक अपना एक प्रभाव है, क्योंकि उसके बाद हम लोग उठेंगे, फिर चाय भी पियेंगे, फिर एक दूसरे से इनफॉर्मल डिस्कशन भी करेंगे, तो उससे हम लोग की बॉन्डिंग अलग होगी, अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, तो उसका ये फायदा है। अब आती है कि हाँ देखिए, अगर आपको जो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है हम आरती वगैरह अटेंड कर सकते हैं, हम उसको कर सकने में हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या उसका वही प्रभाव है कि आप जब एक मंदिर में जाते हैं तो क्या उसकी ऊर्जा और शक्ति जो है शरीर में आप प्रवेश करती है, या जिससे हमारा एक कॉन्शियसनेस लेवल जो चेंज होता है, क्या वो हो सकता है? हाँ, और बेस्ट तो ये हम अपने घर पे ही पूजा करते हैं, सब हमारे हर घर में मंदिर होते हैं छोटे छोटे से, हम सब घर में पूजा करते हैं, मोहल्ले के मंदिर में जाते हैं, क्षेत्र के मंदिर में जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे पिताजी बैंक ऑफिसर हैं, लेकिन वो कभी डेबिट कार्ड, ये एटीएम कार्ड नहीं यूज करते। रिटायर होने के बाद भी वो जाते हैं बैंक में, बोलते हैं अरे इसी बहाने 2-4 लोगों से बातचीत होती है, मिलते हैं, अपने संबंध बने रहते हैं। तो ये एक भारत है। तो उस दृष्टिकोण से मैं जो मानता हूं कि ठीक है टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेड यूज है। दूसरी चीज जो मेजर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा हमारे देश में, जो मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं, वो होगा इंटरनेशनल टूरिज्म। जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है कि सरकार को एक प्लान्ड वे में एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनानी चाहिए किसी भी फॉरेन ट्रैवलर के लिए, कि जब वो भारत में आते हैं तो उनका सबसे पहले एयरपोर्ट के में टेस्टिंग हो, कम से कम एक दिन के लिए तो उनको सरकार अपने पास कहीं पर रोक सकती है। उनकी टेस्टिंग होने के बाद अगर वो कोविड पॉजिटिव नहीं है या वो निगेटिव है, तो उनको वो भारत में अलाउ कर सकती है। उसके बाद एक उनको, जैसे अभी हमारा कोई जैसे ऐप लेके जिसमें कि जीपीएस डिवाइस हो, उनके लोकेशन ट्रेस की जा सकती हो, तो इस तरह से लोगों को देने आने का प्रोविजन किया जा सकता है। और वो इंश्योरेंस की वजह से अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके पूरे इलाज का खर्चा और उनके रहने का, खाने का, उतने दिनों का खर्चा वो इंश्योरेंस पॉलिसी से उठाया जा सकता है। तो इसको ऐड कर सकती है सरकार, ये मेरा एक सुझाव है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर। एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन था चंद्रशेखर जी का, क्या गजनी जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो क्या वो पूरा सोमनाथ मंदिर का खजाना ले गए? क्या वो खजाना आज भी है? देखिए हमारे सारे मंदिर बहुत रिच हैं, अगर वो पूरा ले भी गया होगा उसके बाद भी हम लोगों ने भर दिया दोबारा से। अजीत जी आपको क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? हमारा खजाना आज भी है और कहाँ है? जनता जवाब चाहती है। हमारा खजाना जो है वो हमारे पुरुषार्थ में है। हमारा सनातन समाज बहुत पुरुषार्थी है, बहुत क्षमतावान है। एक बार बस हम अपनी जड़ों को पहचान लें, अपनी व्यवस्थाओं को समझ लें, अपने आचार्यों के मार्गदर्शन को या आचार्यों की तप को एक बार समझ लें,
तो हम उससे बड़ा खजाना कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारा पुरुषार्थ है, हमारा चिंतन है, हमारी व्यवस्था है। हमको नहीं लगता कि हम उससे कहीं कम हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आत्मचिंतन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर अगर 1 मिनट में अगर मैं कहूँ कि एक समापन संदेश अगर आप दोनों दे एक युवाओं को और जो भी लोग जुड़े हुए हैं कि कैसे आगे, कैसे इस चीज को कैसे देखे, टेम्पल इकोनॉमी के बारे में सब एक समापन संदेश अगर 1 मिनट का अगर आप अच्छा, इसमें अजीत थोड़ा जी बोलेंगे? कंफ्यूजन हो गया। नहीं, वहाँ हो गया, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वो सोचे मैं बोलूं, मैं सोचूं वो बोलें। तो 1 मिनट ऐसे ही 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए सर। पहले आपकी श्रृंखला को हम ब्रेक करते हुए बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, आज का युवा जो है, आज का समाज पूरा ही बहुत जागरूक है और हमारे पास इंफॉर्मेशन की आज की समय में कमी नहीं है। इंटरनेट है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। दूसरी बात और है कि कम्युनिकेशन के मोड भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो मेरा ये है कि टेक्नोलॉजी को हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहाँ पे हम अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यूज को डेवलप कर पाए। इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमको यूज करे वो हमें नहीं करना है। तो हमको उतना ही एडिक्ट होना है अपनी सिस्टम को डेवलप करने के लिए कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, हाँ, टेक्नोलॉजी हमको यूज ना करे। बस मेरा ये एक संदेश। अजीत सर आप? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अपने मन के भीतर निराशा को बिल्कुल जन्म न लेने दें। ऐसी सिचुएशन, ये क्षणिक सिचुएशन ऐसी आती रहती हैं, ऐसी चीजें आती रहती हैं। वो कहते हैं ये दौर भी बीत जाएगा। हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी हमारे ऋषियों, हमारे आचार्यों, हमारे पूर्वजों के तप की है। स्वाध्याय के, आत्मचिंतन की तरफ हम ध्यान दें, अपने उधर अपना मन लगाएं और बिल्कुल किसी भी प्रकार की निराशा को अपने भीतर स्थान देने की जरूरत नहीं है। आगे इस कोविड ने अलग, चूंकि आज का विषय अलग था, कोविड-19 ने भारत के लिए एक बहुत ही प्रशस्त मार्ग खोल दिया है। उसको ठीक से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, उस पर आगे चलने की जरूरत है। हम एक उन्नत भारत, उन्नत समाज के निर्माण में अपना योगदान अवश्य कर पाएंगे और संभवतः एक बड़े भारतीय समाज, भारत के एक बहुत बड़े, मतलब कहते हैं, आप कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता, समाज निर्माता, उन्होंने वो एक कार्य शुरू किए तो उन्होंने कहा याची देही याची डोला, मतलब इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से हम चीजों को देख सकते हैं। तो हम जो लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर हम इस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपने ही आंखों से, अपने ही जीवन में भारत को पुनः परम वैभवशाली, पुनः गौरवशाली भारत को बनते हुए देख सकेंगे और उसमें अपना योगदान कर सकेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की निराशा को अपने मन के भीतर नहीं बैठने देना है। स्वाध्याय, स्वचिंतन, अपना तप, अपना पुरुषार्थ और बढ़ाना है और हम निश्चय ही अजेय होंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस विमर्श का जो पूरा सार समझ में आ रहा है कि हमें और ज्यादा अपने दर्शन को, अपनी व्यवस्था को, अपने लिटरेचर को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है और यही चीज हमारे आने वाले जीवन में मार्ग को प्रशस्त करेगा। मैं भानु जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी हमारे ऑडियंस को और हमारे वक्ता को भी दें। जी दोबारा नमस्कार मेरा। क्योंकि कबीर काशी कबीर की भी भूमि है और हमारा काशी फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही है कि काशी की संस्कृति की जितनी विभिन्नताएं हैं उसको हम जन जन तक, भारत के अन्य सभी कोनों में ले जाए, भारत के बाहर भी ले जाए। तो इसी सिलसिले में इस रविवार को हमारे साथ कबीर चौरा मठ के कुछ संत जुड़ेंगे और कबीर वाणी का उस दिन कीर्तन होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि शाम को 5 बजे रविवार को आप हमारे साथ जुड़े और कबीर की काशी को समझे, क्योंकि कबीर काशी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत के जो सिंक्रेटिक कल्चर है उसमें कबीर का महत्वपूर्ण योगदान है और कबीर को समझे बिना आज के भारत को भी समझना मुश्किल है। और क्योंकि काशी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, उस सांस्कृतिक राजधानी के केंद्र में कबीर भी स्थापित हैं। तो रविवार का आप सभी का स्वागत होगा कबीर वाणी में और कबीर के बारे में जानने के लिए शाम को 5 बजे। संकेत जी बहुत बहुत, भानु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग जुड़िए और ऐसे ही हम कार्य करते रहेंगे। आप सबका समर्थन हमें आगे भी चाहिए। मैं
इस कार्यक्रम में जुड़े, इस विमर्श में जुड़े सभी मेहमानों का, हमारे वक्ताओं का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं काशी फाउंडेशन की तरफ से, हमारे जुड़े मेहमानों की तरफ से दोनों वक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। ये एक इजी विषय नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको कार्ल मार्क्स और इल्टन मायो की किताबें ज्यादा मिलती है और अध्यात्म और धर्म की किताबें बहुत कम मिलती है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन आगे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संकेत जी, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा। अजीत जी 1 मिनट, मैं पहले अपनी बात एक थोड़ा सा रख सकता हूँ। भानु जी और आपकी पूरी टीम को, काशी फाउंडेशन को हम लोग की तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बहुत ज्यादा धन्यवाद, जो आप एक इतना ही सुंदर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भारत के परामर्श को भारत के इस कठिन परिस्थिति में फिर से स्थापित करने का प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं। और अगर हमसे कोई भी योगदान, कोई भी सहयोग हमारी कैपेसिटी में हो सकता है, मैं कहाँ पे किस कैपेसिटी में लाई करता हूँ मुझे पता नहीं, बट हम लोग हमेशा तैयार हैं। बहुत, और जितने भी ऑडियंस आ जाए हमको सुनने, उनके लिए उन सबको बहुत धन्यवाद। तो में एक छोटी सी सूचना है, अगर किसी को भी काशी फाउंडेशन से जुड़ना है तो वो हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं kashifoundation@gmail.com। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो हम जो प्रोग्राम करा रहे हैं, जो भी अपडेट्स होगा, आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, सारी चीजें लाइव चल रही है, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी है अभिनव जी कि फीडबैक फॉर्म हमारा ऐसा कुछ नहीं है अभी, लेकिन अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप हमेशा आमंत्रित हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप जिस भी माध्यम को आप यूज करते हैं उससे हमें फीडबैक दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ जुड़ने का। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आयोजन आगे लगातार करते रहिए, इस विमर्श को बढ़ाते रहिए। हम सब आपके साथ हैं, आपके इस विमर्श को आगे बढ़ाने में हम सबकी जो भी भूमिका होगी, हम सहर्ष तैयार, उसके लिए तैयार हैं। और साथ में इस भारतीय गौरवशाली परंपरा को हम आगे बढ़ाने में हम सबका जो भी सहयोग है होगा, हम सब साथ में इस कार्यक्रम आगे बढ़ें। धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।